Welcome to Ignited Minds Tutorials, your one-stop destination for all your educational needs. Whether you're struggling with understanding semiconductors, preparing for IIT JEE or NEET exams, or simply trying to grasp the concepts of physics in class 11 and 12, we've got you covered. At Ignited Minds, we offer comprehensive tutorials on a wide range of topics, from video uploads to detailed explanations of complex theories. Our experienced instructors are well-versed in the CBSE and MH State Board curriculums, ensuring that you receive the best possible guidance to excel in your studies. With our easy-to-follow tutorials and expert guidance, you can gain a deeper understanding of key concepts and boost your confidence in tackling challenging subjects. Whether you're a high school student or a parent looking for additional support for your child, Ignited Minds Tutorials is here to help you achieve academic success. So, why wait? Join us today and let us ignite your minds with knowledge and understanding. Let's embark on this educational journey together and unlock your full potential. Whether you're aiming for top scores in your exams or simply seeking to broaden your intellectual horizons, Ignited Minds Tutorials is here to support you every step of the way. ओके बच्चा पार्टी विल ने बोला उस दिन कि थोड़ा फास्ट भी जा रहे थे और थोड़ा कंफ्यूजन भी उस दिन हो गया था। आई जस्ट स्टार्ट विद दिस वंस अगेन। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स होता क्या है? व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? एनीवन? सेमीकंडक्टर्स, तो देखो हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं जिस चीज का कंडक्शन के साथ लेना देना हो। तो वन वी हैव कंडक्टर्स, ठीक है, ठीक है, कंडक्टर्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The other is insulators, poor conductors of electricity, and इनके बीच में आता है भाई साहब आपके semiconductors, ठीक है। तो semiconductors are the ones in which अगर आप इनके environment में थोड़ा सा change लाते हैं, they will start conducting electricity. Semiconductors are essentially elements. If you happen to bring a certain change in their environment, they will start conducting electricity under special circumstances, ठीक है। ओके, सो ये सब भाई साहब हम करेंगे यहाँ पे। देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वैक्यूम ट्यूब्स, पहले के जमाने में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, अभी नहीं यूज होते क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स काफी बल्की होते हैं। जो काम सेमीकंडक्टर्स करते हैं वही काम पहले के टाइम में वैक्यूम ट्यूब्स करते थे, बट राइट नाउ दे आर नो लॉन्गर इन यूज। अभी धीरे धीरे सब सेमीकंडक्टर्स ने उनकी जगह ले ली है। वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू cover these things in this topic. Okay, so electronic devices are those in which we can control the flow of energy by controlling the flow of electrons. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहली बात होते क्या है, ठीक है। जैसे आप देखो, आपके टीवी के ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके टीवी के साउंड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सेम विद अ पीसी, ठीक है, सेम विद अ ट्रांजिस्टर, सेम विद अ कैमरा, ठीक है। ये सारी चीजों को आप, जैसे आपके मोबाइल के लाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आप किस तरह की फोटो लेने चाहते हैं, ठीक है, मोबाइल के हिसाब से आपके लैपटॉप में भी आप सेम चीजें कर सकते हैं। तो ये जो आप कम ज्यादा कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ट्यूब लाइट है यहाँ पे, इसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, इसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रेगुलेट दिस, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पे, ठीक है, आप एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहे साउंड एनर्जी देते हो, चाहे लाइट एनर्जी देते हो, इस एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं by controlling the flow of electrons. So electronic devices are those in which we can control the flow of energy by controlling the flow of electrons. ठीक है, हम flow of electrons को control कर सकते हैं। जैसे electronic devices, it is a semiconductor device used to, transistor क्या होता है, what is a transistor, ठीक है। So ये एक ऐसा semiconducting device है जो amplify और switch electrical signals and electric power. तो amplify मतलब क्या होता है, what do you mean by amplify? एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई साहब, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और इलेक्ट्रिक पावर को एम्पलीफाई करता है। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच एम्पलीफाइज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और द इलेक्ट्रिकल पावर। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दीस थिंग्स। ट्रांजिस्टर्स आर वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ज्यादा करके आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये रहेगा, ठीक है। जैसे मोबाइल में रहेगा, सोलर पैनल्स में रहेगा, एलईडी बल्ब, ऐसे बल्ब में रहेगा भाई साहब, एलईडी टेलीविजन, इन सब में ये रहेगा, ठीक है। दीज आर बेसिकली ट्रांजिस्टर्स, ये एम्पलीफाई करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर या एनर्जी को, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे, आपने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में प्राइमरी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में प्राइमरी एक हिस्सा होता है मेटल्स का, एक हिस्सा होता है नॉन मेटल्स का। मेटल्स जनरली आर गुड कंडक्टर्स
एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। एक हिस्सा है आपका भाई साहब सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स, तो कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे, देखो जैसे ये वाला आपका सेमीकंडक्टर है, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली सेमीकंडक्टर्स। जितने भी आपको देखेंगे, ठीक है, बोरॉन ये तो बहुत कम यूज होता है, सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, ये सब आपके टेलेरियम, ये सब आपके भाई साहब सेमीकंडक्टर्स। बहुत ज्यादा यूज होने वाले सिलिकॉन है जर्मेनियम में, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स का जो अमेरिका में एक पूरा कॉलोनी है, उसको अपन बोलते हैं सिलिकॉन वैली, इज नोन एज सिलिकॉन वैली, ठीक है। आपके कंप्यूटर के जितने भी सर्किट्स बनते हैं वो ज्यादा करके सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन विच इज अ सेमीकंडक्टर। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको इस कलर का एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये ज्यादा करके आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। सो वी विल हैव अ क्लास, सो सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल which have conductivity between conductors. They are not very good conductors and neither they are very poor insulators, ठीक है। तो कंडक्टर्स आपके बेस्ट कंडक्टर तो ऑब्वियसली सिल्वर है, लेकिन सिल्वर इज अ वेरी एक्सपेंसिव एलिमेंट बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स आउट ऑफ इट और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आउट ऑफ इट। तो हम ज्यादा करके कॉपर को प्रेफर करते हैं, ठीक है, विच इज चीपर। और इंसुलेटर्स जैसे डायमंड ग्लास, ये सब से भाई साहब कितना भी कोशिश कर लो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली, ठीक है। ये सब इंसुलेटर्स हो गए, इनके बीच में आता है भाई साहब आपका सेमीकंडक्टर्स। वी हैव सेमीकंडक्टर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So semiconductors are materials whose electrical properties can be tailored to suit our requirements. ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने भाई साहब स्विच और बल्ब के बीच में कॉपर का तार लगा दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते, अभी इलेक्ट्रिसिटी धड़ाधड़ फ्लो होगी, ठीक है। आप इस इलेक्ट्रिकल फ्लो को रोक नहीं सकते या इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर की अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर लगाते हैं बीच में, तो आप इंटेंसिटी को रेगुलेट कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए। इफ यू आर यूजिंग अ सेमीकंडक्टर, दैट्स द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सेमीकंडक्टर्स। बाय चेंजिंग देयर सर्कमस्टेंसेस, बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट, वी कैन चेंज देयर कंडक्टिविटी। ये तो इसीलिए हम बोलते हैं टेलर मेड। टेलर मेड, जैसे अगर आप भाई साहब किसी दुकान में जाते हैं और रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं, ठीक है, और अगर आप इस दुकान में जाते हैं, कट पीस खरीदते हैं और उस कट पीस को भाई साहब किसी टेलर के पास ले जाकर कपड़े सिलवाते हैं, तो आपके साइज के हिसाब से, दुकान से आपने रेडीमेड लिया तो आपके साइज के हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जब टेलर से बनाते हैं तो वो आप रेगुलेट कर रहे हैं उसको। तो ऐसा ही भाई साहब आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब हम सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं, इट इज टेलर मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, टेलर मेड टू सूट आवर रिक्वायरमेंट्स। Before the discovery of semiconductors, electrical properties of materials could be of two types. एक तो भाई साहब था कंडक्टर और दूसरा था इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर्स such as metals have very high electrical conductivity. For example, conductivity of silver. अभी ये कंडक्टिविटी किस चिड़िया का नाम है? देखो, आपने ये पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस हो गया क्या, ओम्स। रेजिस्टिविटी समझ लीजिए, हम यहाँ पे इसका यूनिट निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी रेजिस्टिविटी भाई साहब कितने में आ जाएगी? रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम ऐसे लिखते हैं, 1 बाई कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? तो जितना आप रेजिस्टिविटी को बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी, और जितना आप कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी उतनी कम होती है। जितना आप रेजिस्टिविटी को कम करेंगे, कंडक्टिविटी उस चीज का उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑब्वियसली इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, तो ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर, ठीक है, पर ओम पर मीटर। अभी इस पर ओम को हम सीमेंस बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब सीमेंस मीटर, ठीक है। पर ओम को 1 बाई ओम इज नोन एज सीमेंस, और पर ओम इज नोन एज सीमेंस, ठीक है, सीमेंस पर मीटर। ये यहाँ पे देखो सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻⁷ एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर। सिल्वर की भाई साहब हाई कंडक्टिविटी है, ठीक है। आपने कोई सिल्वर का तार बना दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, दूसरी तरफ आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सख्त से फ्लो होगी, है ना। इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, ये फ्री पाथ अलाउ करेगा ही करेगा, ठीक है। Whereas an insulator or a bad conductor like glass has a very low electrical conductivity of the order of 10⁻⁻10। अब सोचो भाई साहब, ये है 10⁻⁻10 और ये भाई साहब 10⁻⁷, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क है।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और अ सेमीकंडक्टर इज इन दिस रेंज। अभी आप देख लो भाई साहब तीनों वैल्यूज को डालकर, इसका आ गया कितना 6.25 इंटू 10⁻⁷ सीमेंस पर मीटर। ये हो गया किसका भाई साहब, सिल्वर का, ठीक है, और ग्लास का, ठीक है, 10⁻⁻10 सीमेंस पर मीटर, ये हो गया आपके ग्लास का। यहाँ पे आपका भाई साहब आता है क्या, दिस इज 1.56 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर मीटर, ये आ गया किसका भाई साहब, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन इज इन बिटवीन दीज टू, सिलिकॉन इज इन बिटवीन दीज टू। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। It lies between that of a good conductor and a bad conductor. A semiconductor can be customized to have its electrical conductivity as per our requirement. तो हम इसको भाई साहब कस्टमाइज कर सकते हैं to have its electrical conductivity as per our requirement. ठीक है? Temperature dependence of electrical conductivity of a semiconductor can also be controlled. तो आपका जो सेमीकंडक्टर है उसका ज्यादा करके टेम्परेचर से डिपेंडेंस रहता है। अभी एक चीज आपको बता दूं, जैसे आप अगर बात कर रहे हो रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है भाई साहब, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, किसी भी चीज में जैसे कोई मेटल कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी ये आर नॉट क्या है भाई साहब, ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अल्फा क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और भाई साहब ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो हम जनरली देखते हैं क्या कि भाई आपका जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया अफरा तफरी बढ़ गई, कोलिजन्स ज्यादा होने लगेंगे, कोलिजन्स ज्यादा होने लगेंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। आप धीरे धीरे समझेंगे इसको, 12th में जाकर पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड है। तो रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है बहुत देर से चल रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बहुत देर से चल रहा है तो गर्म तो होगा ही, गर्म होगा अगर तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कायदे से चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में ऑफ करते रहना पड़ेगा उसको, ताकि आपका ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट ना जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से उतना ज्यादा आपका एनर्जी भी तो वेस्ट होगा, ठीक है। सो इट्स एडवाइजेबल दैट वी कीप ऑन स्विचिंग ऑन ऑफ of electrical appliances so that the resistance can be controlled. Okay, temperature dependence of electrical conductivity of a semiconductor can also be controlled. इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं भाई साहब, किसको, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सॉलिड टेक्स प्लेस बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। अभी यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के चार्ज कैरियर्स क्यों बोल रहे हैं, अभी तक तो आपने पढ़ा है कि आपके कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो आप यहाँ पे चार्ज कैरियर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए हम चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं। अभी देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी समझ लो कोई 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 सर्किट है, लेट्स से ये आपका लेट्स से एक सर्किट है, ओके, ये आपका सर्किट है, ये आपका स्विच है। अभी भाई साहब आपका क्या जा रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ऐसे जा रहे होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कन्वेंशनल करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना अपन ने पढ़ा हुआ है, ओके। अभी होता क्या है, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स क्यों बोल रहे हैं, समझ लो ये इलेक्ट्रॉन की पहली जगह थी, ठीक है, यहाँ पे ये था, अभी ये यहाँ से उठकर यहाँ मूव हो गया, इस जगह पे मूव हो गया, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो इधर का जगह तो भाई साहब खाली हो गया, है कि नहीं, ये जो ये जगह खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुआ, ये जो जगह खाली हो गई, जब आप जैसे आप बोलते हैं कि हाइड्रोजन में या कोई भी जैसे समझ लो सोडियम, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। सोडियम प्लस क्यों हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि न्यूक्लियस से उसका एक पॉजिटिव चार्ज बाहर आया, इसलिए क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज। क्या ये समझ में आ रहा है, जैसे सोडियम का सोडियम प्लस होना मतलब ये नहीं है कि उसके न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन बाहर आ गया है,
सोडियम का पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपके कंडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलता है तो उस जगह का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज अ होल, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं भाई साहब होल, ठीक है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज अ होल, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपके चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोटॉन्स नहीं बोलेंगे इसको, यू आर नॉट गोइंग टू से प्रोटॉन। क्योंकि भाई साहब प्रोटॉन क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि भाई साहब प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यू आर गोइंग टू रिक्वायर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक द प्रोटॉन्स आउट ऑफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको होल्स। इन्हीं दोनों को अपन क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर्स। दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स, ठीक है, बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। It depends on its temperature, the number of charge carriers, how easily these carriers can move inside a solid, its crystal structure, types and nature of defects। तो अभी कितने इजीली ये मूव कर सकते हैं, इस पे आपका कंडक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मेटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो बड़ी स्मूथ है, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में है नहीं, तो आपके वैसे ही चार्ज कैरियर्स कितने स्मूथली या कितने इजीली किसी सेमीकंडक्टर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, उस पे उस सेमीकंडक्टर का कंडक्शन डिपेंड करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका भाई साहब डिपेंड करता है कैन मूव इजीली इनसाइड अ सॉलिड, तो इस पे किस पे डिपेंड करेगा? मोबिलिटी पे, इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, टाइप्स एंड नेचर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड, क्या क्या नेचर ऑफ डिफेक्ट्स हैं भाई साहब, ठीक है, टाइप्स एंड नेचर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड एक्सेट्रा। देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इट कुड बी अ गुड कंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर और अ बैड कंडक्टर, ठीक है, गुड, सेमीकंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। तो हम यहाँ पे भाई साहब कंडक्शन के हिसाब से सब बोल रहे हैं, ठीक है। एक होता है बहुत अच्छा कंडक्टर, एक होता है पुअर कंडक्टर, और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है, ओके। तो आप देख लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मटेरियल और उसकी कंडक्टिविटी। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, वुड ऑलमोस्ट अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बीच में भाई साहब ये, तो ये आपको दिख रहा है जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, ये सब है आपके सेमीकंडक्टर्स, दीज आर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सिग्मा आपको मैंने पहले ही बताया, सिग्मा क्या है? 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू n इंटू क्यू इंटू यू। n क्या हो जाएगा भाई साहब? चार्ज कैरियर डेंसिटी, मतलब हो गया आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया चार्ज कैरियर डेंसिटी। अब ये चार्ज कैरियर जैसे मैंने आपको बताया प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इट कैन बी अ प्रोटॉन और सॉरी नॉट अ प्रोटॉन, अ होल और एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, ओके। आपका क्यू हो गया भाई साहब चार्ज ऑन द कैरियर्स, मतलब प्लस है या माइनस है, ये क्यू हो गया। और क्या है भाई साहब आपका? मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स, ये आप पढ़ेंगे भाई साहब, मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स, कितने इजीली वो मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स, ठीक है, ओके। सो ये हो गया भाई साहब आपका सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू n इंटू क्यू इंटू यू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन द कैरियर एंड मोबिलिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मोबिलिटी, ओके। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द मेजर ऑफ द ईज, कितने इजीली with which a carrier can move in a material under the action of an external electric field। जैसे आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कितने इजीली वो चार्ज उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, दैट इज प्रिसाइसली नोन एज इट्स मोबिलिटी। क्लियर है भाई साहब? इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज द मास ऑफ द कैरियर, whether the material is crystalline or amorphous, the presence of structural defects in a material, the nature of impurities, ये सब हम पढ़ेंगे। आप impurities डालते हैं, ठीक है, आप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उनके अंदर जबरदस्ती का impurities डालते हैं, we will see those things, ठीक है, ओके। तो एक चीज जो आपको समझनी है कि भाई साहब टेम्परेचर के साथ कैसे कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में फर्क आता है, ठीक है। अभी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि भाई साहब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? बढ़ेगा। ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपने टेम्परेचर को भाई साहब बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो भाई साहब ये भी बढ़ेगा, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। आपके टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज, ठीक है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बड़े स्मूथली अभी तक मूव कर रहे थे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका भाई साहब क्या बढ़ेगा? उनका मूवमेंट बढ़ेगा, तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। इट्स लाइक दिस कि भाई साहब एक दरवाजा है, ठीक है, आपने समझ लो भाई साहब आपके स्कूल में 5,000 बच्चे पढ़ते होंगे, ठीक है, 5,000 बच्चे पढ़ते होंगे, 11th में जितने भी बच्चे हैं, अभी समझ लो स्कूल में सिर्फ 11th क्लास को रिलीज किया गया है, तो वही गेट है, आराम से भाई साहब पब्लिक मूव आउट हो रही है, ठीक है।
अभी अचानक में हमने सबको रिलीज कर दिया, 5,000 बच्चों को रिलीज कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि भाई साहब डंडा लेकर दौड़ाओ सबको, ठीक है? तो क्या होगा? वही गेट अभी भाई साहब, मतलब जिस गेट से आराम से 10-15 बच्चे आराम से निकल रहे थे, अभी शायद एक भी बच्चा ठीक से नहीं निकल पाएगा। धड़ाम धुड़ूम गिरेंगे उड़ेंगे, ठीक है? सब डंडा लेकर दौड़ा रहे हैं, तो अफला तफली का माहौल हो गया वैसे, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का, तो उसमें आराम से स्मूथली भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? देयर वाज अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मोमेंट यू सप्लाइड हीट और मे बी there was a heat gain from somewhere, then what will happen? The resistance will increase. There will be more collisions. And since there will be more collisions, the resistance will increase. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो shows the temperature dependence. अभी भाई साहब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका कंडक्टिविटी गिरता हुआ दिखेगा, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है? सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ यू टेंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, आप अगर भाई साहब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? गिरेगी। किसकी भाई साहब? मेटल्स की या कंडक्टर्स की बोल सकते हैं हम, ठीक है? द देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज in the conductivity of metals if you happen to increase the temperature. Why? Because the resistance increases. ये resistance बढ़ जाता है। resistance क्यों बढ़ जाता है भाई साहब? Why does the resistance increase? The resistance increases because obviously there will be more collisions. ठीक है, क्लियर है? लेकिन सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर्स में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, कंडक्टिविटी भी भाई साहब बढ़ती जाती है। द कंडक्टिविटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज एंड व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है? दिस हैपेंस इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है? This happens in the case of semiconductors when you increase the temperature. आप अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. So this is the graph of semiconductors. This is the graph of normal metal conductors. ठीक है, क्लियर है? Okay, okay, okay. So आपका भाई साहब, when the temperature of a semiconductor is increased, its electrical conductivity also increases. The electrical conductivity of a metal decreases with increase in its temperature. Are we clear to this one, people? Okay, 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 okay. Variation of electrical conductivity of semiconductors with change in its temperature is a very useful property and finds applications in a large number of electronic devices. यही सबसे बड़ा इसका प्रॉपर्टी है कि इसका जो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन बेसिकली यूज इट एज पर आवर पर्पस, ठीक है? तो ये जो कस्टमाइज करने की प्रॉपर्टी है, इसी को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच सेमीकंडक्टर्स आर वेरी वाइडली यूज्ड। तो एक हो गया भाई साहब आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हो गया। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कौन हो जाएंगे? जो कंपाउंड से बनते हैं, जैसे कैडमियम सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। ऑब्वियसली दीज विल बी compounds made up of more than one metals, one type of metal or non-metal, whatever. Organic semiconductors, anthracene, dope. कभी ये जो डोप है, ये वाला ड्रग्स लेने वाला डोप नहीं है, दिस समथिंग एल्स, ठीक है? डोप मतलब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है? एक चीज जैसे आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे समझ लो ये आयरन है। आयरन आयरन दो सैंपल्स में एग्जिस्ट करता है। देखो मैं आपको एक डोप मतलब क्या वो दिखा रहा हूँ। तो Fe2+ होता है एक, और एक होता है भाई साहब Fe3+, है ना? ठीक है, समझ लो अभी आयरन का ये एक सैंपल है, ठीक है? ये एक आयरन का सैंपल है। ये हो गया आपका Fe2+, ये हो गया भाई साहब आपका Fe2+, यहाँ पे है Fe2+, यहाँ पे है Fe2+, यहाँ पे है आपका Fe2+, यहाँ पे है आपका Fe2+, ठीक है? क्लियर है? कितना चार्ज हो जाएगा इसका टोटल? 6+, ठीक है? ओके, अभी समझो, मैंने यहाँ से एक को उड़ा दिया, ठीक है? यहाँ से एक को उड़ा दिया और भाई साहब यहाँ से एक को उड़ा दिया और यहाँ से एक को उड़ा दिया, ठीक है भाई साहब? अभी कितना चार्ज हो गया? हाँ, पहले कितना था? 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले 12+ का चार्ज था ना, ठीक है? 12+ का चार्ज था। अभी भी मुझे 12+ का चार्ज ही रखना है, तो मैं क्या करूं? यहाँ पे भाई साहब Fe3+। अब बोलो भाई साहब, 2 + 2 4, 2 3 6, 6 + 6 12 है, लेकिन यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, ठीक है? ये हो गया भाई साहब आपका, क्या होगा बोलो? यहाँ से आपके, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? ये जो स्पेस क्रिएट हो गया, अभी इसमें भाई साहब या तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या तो प्रोटॉन्स आएंगे, तब इसमें कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि हर बार सेमीकंडक्टर को आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा।
ठीक है। आप ऐसे डोपिंग से भी सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया है, एटम्स को कम कर दिया है, चार्ज वही रखा है, चार्ज आपने कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया, चार्ज वही रखा है आपने, ठीक है। तो अभी एटम्स कम हो गए, स्पेस क्रिएट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया तो फिर से मूवमेंट चालू हो जाएगी, मूवमेंट चालू हो गई तो कंडक्टिविटी चालू हो गई। दिस इज व्हाट वी मीन बाय डोपिंग, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब जब आपके अंदर कुछ उल्टा सीधा आता है और आप उल्टा सीधा बिहेव करने लगते हैं, है ना। व्हेन यू टेक ड्रग्स दैट इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। तो आपके अंदर भाई साहब कंडक्टिविटी नहीं थी पहले, लेकिन इसके चलते कंडक्टिविटी चालू हो गई, दैट इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन व्हाट इज डोपिंग? वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एंथ्रासीन, डोप, ठीक है, और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड। अभी तक हमने इसका बहुत ज्यादा वाइड यूज चालू नहीं किया है, दिस इज स्टिल अंडर स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, बट दिस इज मोस्ट वाइडली यूज। जैसे मैंने आपको बोला भाई बिल गेट्स का जो पूरा सेटअप है अमेरिका में, दैट इज नोन एज सिलिकॉन वैली, इट इज नोन विद द नेम ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये आपके ओके, तो ये काफी ज्यादा प्रचलित हैं, कौन से, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ओके। Electrical properties of semiconductors are different from metals and insulators due to their unique conduction mechanism. The electronic configuration of the elemental semiconductors, silicon and germanium, plays a very important role in their electrical properties. इनका भाई साहब बहुत ज्यादा योगदान है किसमें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ओके, तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे आर फ्रॉम द फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट में आता है, कार्बन के ग्रुप में, ठीक है। इन द पीरियोडिक टेबल दे हैव अ वैलेंसी ऑफ 4, ये सब जितने भी आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे विल हैव अ वैलेंसी ऑफ 4। देयर एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कार्बन का होता है वैसे इनका भी कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। At absolute zero temperature, all the covalent bonds are completely satisfied in a single crystal of pure silicon or germanium. Absolute zero temperature में भाई साहब ये सब एक साथ एक crystal बना लेते हैं. They will form a crystal. They will bond with each other by covalent bonds, single covalent bonds. ठीक है? The conduction mechanism in a semiconductor can be better understood with the help of band theory of solids. ठीक है? अभी ये band theory क्या है? तो एक सिंपल सा आइडिया देता हूं आपको. हर एक एलिमेंट में बैंड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज एनर्जी बैंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर एनर्जी बैंड्स बच्चा पार्टी? जैसे समझो अगर कोई कंडक्टर है, इफ वी हैव अ कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या हो जाएगा भाई साहब, समझ लो ये है, दो टाइप के बैंड्स होते हैं आपके एक्चुअली। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड, एंड द अदर वन इज नोन एज वैलेंसी बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। तो आपका समझिए ये आपका है भाई साहब कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंसी बैंड, ठीक है। ये आ गया आपका वैलेंसी बैंड, ये हो गया आपका भाई साहब कंडक्शन बैंड। अभी वैलेंसी बैंड मतलब क्या होता है भाई साहब? वैलेंसी बैंड में होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको भाई साहब ये पूरी जगह मिल जा रही है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं टू कंडक्टर्स। Where are these free electrons coming from? They are obviously coming because of the overlapping between conduction band and valency band. तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है किसके किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में, इसीलिए कंडक्शन बैंड में वैलेंसी बैंड के काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दैट्स व्हाट वी मीन, ठीक है। ये हो गया कंडक्टर की कहानी, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब इंसुलेटर में, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंसुलेटर, दिस इज हाउ द कंडक्शन बैंड वुड लुक लाइक फॉर एन इंसुलेटर, एंड दिस इज वेयर द वैलेंसी बैंड वुड बी, ठीक है। ये इंसुलेटर का कहानी है, ये वैलेंसी बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका एक इंसुलेटर और अ बैड कंडक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये हो गया आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये एक बड़ा गैप है भाई साहब, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इधर तक जाने में काफी एनर्जी लगेगी, ठीक है। कह रहे भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर इलेक्ट्रॉन वहां पे टपेगा, इसीलिए दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपका वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, all these are basically belonging to this category wherein there is a huge difference or a forbidden energy gap between valency band and conduction band. So no matter how much of energy are you going to give to the electrons which are available in the valency band,
they are not going to shift to the conduction band, and hence they will always turn out to be poor conductors of electricity. Are we clear to this one? Okay. अभी आते हैं हम भाई साहब सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर की कहानी क्या हो जाएगी बताओ? आप इमेजिन कर ही पा रहे हो अभी तक? ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है, यहाँ पे एक गैप है। तो सेमीकंडक्टर्स में ना ही ओवरलैपिंग होगी और ना ही इतना बड़ा गैप होगा। ये गैप जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा। दिस गैप इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस गैप इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। जब बार बार आपको बोला जा रहा है कि भाई साहब थोड़ा सा एनर्जी अगर आप सप्लाई करेंगे किसको, सेमीकंडक्टर्स को, तो दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फॉर्मूला एनर्जी गैप है, ये वही एनर्जी की बात की जा रही है। ठीक है, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो हम बोल रहे हैं ना बार बार कि थोड़ा सा एनर्जी अगर हम सेमीकंडक्टर्स को देंगे, दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंसी बैंड आर गोइंग टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड इन ऑर्डर फॉर देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी ये एनर्जी आप डायरेक्टली हीट के माध्यम से दें या ये एनर्जी आप देखिए डोपिंग करके दें। ठीक है, डोपिंग में आपने चेंज कर दिया तो अपने आप वो चालू हो गया। ठीक है, ये हम तय करेंगे, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो इसी को अपन बैंड थियरी बोलते हैं। दिस इज नोन एज द बैंड थियरी। ठीक है, ओके। सो semiconductors, what are the important properties of semiconductors बच्चा पार्टी? It can control the number of charge carriers, electrons and holes. जैसे मैंने आपको बोला, आपके कंडक्टर्स में only electrons are the charge carriers, but in semiconductors we have electrons as well as holes. ठीक है, so it can control the number of charge carriers. ये कंट्रोल कर सकता है, सेमीकंडक्टर कंट्रोल कर सकता है चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को। कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल, तो अगर कंडक्शन को कंट्रोल कर सकता है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इट कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, ये एक डायरेक्शन में ही करंट दे सकता है। ठीक है, इट कैन गिव अ यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, जैसे आपका जो बल्ब है, ठीक है, उसमें भाई साहब यूनिडायरेक्शनल करंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन सेमीकंडक्टर्स में भाई साहब आपका यूनिडायरेक्शनल करंट है। ठीक है, एक डायरेक्शन में ही करंट रहेगा। बल्ब में क्यों यूनिडायरेक्शनल करंट नहीं है? ओके, देखो इस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, आपका कौन सा पावर सोर्स है? एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपका वैसा कोई पावर प्लग है, इसमें आपने कोई गैजेट का प्लग डाल के रखा है, इसको तो भूल जाओ, ये तो अर्थिंग के लिए है। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, क्या जीवन भर ऐसे ही रहेगा? नहीं, हर सेकंड में चेंज होता रहेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ये फिर प्लस माइनस, ये फिर माइनस प्लस, ये फिर प्लस माइनस, ऐसा होता रहेगा। और इंडिया में इसका भाई साहब वैल्यू है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में ये पोलैरिटी 50 बार चेंज हो रही है। ठीक है, ये पोलैरिटी जो है वो 50 बार चेंज हो रही है। आप बोर्ड नहीं दिख रहा है ना उधर, तो व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है ना। व्हाइट जब आएगा ना तो उधर दिखेगा, देखो वो वाला जो कैमरा है आप देख पाएंगे ऐसे ब्लर 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 आता रहेगा। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कैमरा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैच कर रही है, आपके नेकेड आई से ये कैच नहीं हो रहा है, तरता 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 चेंज हो रहा है, मतलब ऐसा ब्लिंकिंग हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन एक सेकंड में 50 बार हो रहा है, इसीलिए आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे, आपका ब्रेन उसको मैप नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये सारे ट्यूबलाइट्स, ये जितने भी लाइट सोर्सेस हैं जो एसी सोर्स से चल रहे हैं, सब इसी तरह से ब्लिंक कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअल, उस तरह से वो जहां पे मेरा बोर्ड दिख रहा है ना सीसीटीवी कैमरा में, जैसे ऐसे ऐसे से आता रहेगा। ठीक है, किसी भी कैमरा को जब आप ऐसे इसके टीवी के सामने लाएंगे या उसके सामने लाएंगे तो ऐसे दिखेगा आपको ऐसा। ठीक है, ब्लर आता हुआ। तो ये जो आ रहा है ये एक्चुअल है, क्योंकि कैमरा जो वो क्या है, वो आपको ये वीडियो कैमरा लग रहा है, लेकिन वीडियो कैमरा नहीं है ये, कर 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 ऐसे आपका पिक्चर्स ले रहा है। ठीक है, तो उसमें उस गैप को वो फाइंड आउट कर लेता है जो आपका नेकेड आई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनमें पोलैरिटी क्या हो रही है, उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग 50 टाइम्स इन अ सेकंड। इस चीज को समझिए, हर चीज में यहाँ पे इट इज चेंजिंग 50 टाइम्स इन अ सेकंड। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन सेमीकंडक्टर्स में आपका यूनिडायरेक्शनल करंट होगा, एक डायरेक्शन में करंट जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर वाले डिवाइसेस को चलाने के लिए आपको अडेप्टर्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? ये सेल फोन जो है जब आप चार्ज करते हैं तो आपको भाई साहब एक चार्जर की जरूरत पड़ती है। चार्जर करता क्या है? व्हाट डज अ चार्जर डू? ये भाई साहब एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको जैसे अगर पीसी चलाना है या लैपटॉप चलाना है, उसका अलग से एक अडेप्टर आएगा, उसको पहले आपको चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके एसी करंट को डीसी करंट में वो कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो आपके सेमीकंडक्टर्स में यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता है आपको। ठीक है, यू गेट यूनिडायरेक्शनल करंट इन सेमीकंडक्टर्स।
ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन सम? ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब वैक्यूम ट्यूब्स की। बहुत सालों तक वैक्यूम ट्यूब्स का चलता रहा भाई साहब। वैक्यूम ट्यूब्स वेर बेसिकली ऑपरेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आए नहीं थे तो तब तक वैक्यूम ट्यूब चल रहा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है भाई साहब, ये एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां तक जा रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन विच वुड बी दैट डायरेक्शन कैथोड से एनोड में। ठीक है, ओके, वैक्यूम इज क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड लूज इट्स एनर्जी। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, लेकिन हमको इसको वैक्यूम का एनवायरमेंट देना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड किया करेगा ही तो उसकी एनर्जी जाएगी, हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दीज वेर वैक्यूम ट्यूब्स विच वेर यूज्ड टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपके जो पुराने मॉडल के टीवी है, जो एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने मॉडल के टीवी है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स है, दोज आर बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अगर उस वैक्यूम ट्यूब में थोड़ा भी एयर चला जाता है तो आपके टीवी खराब हो जाएंगे। ठीक है, पहले के जमाने के जो टीवी आते थे, ठीक है, या वो डब्बा वाला जो कंप्यूटर आपको दिखता था, वो सब वैक्यूम ट्यूब से है। वो डब्बा इसीलिए है क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब को लेंथ लगता है। ठीक है, उस वैक्यूम ट्यूब को लेंथ लगता है। आपके जो टीवी होंगे वो मोटे मोटे टीवी आपने देखे हैं, अभी तो वैसा दीवार में चिपका दो वैसा, है ना, वैसा वाला टीवी, क्योंकि एलईडी टीवी आ गया है। लेकिन पहले के जमाने में वैसा मोटा मोटा उसका जो बैक साइड होता था ये मोटा होता था, क्यों? क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब लगता था। ठीक है, तो दीज वैक्यूम ट्यूब्स इज द, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है तो आपके पिक्चर ट्यूब में आ रहे हैं और उसी से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका टेस्टिंग अगर आप करेंगे, आपके घर पे आकर आप टीवी के सामने ऐसा अपना ये रखेंगे, आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे वैसे। ठीक है, आपके हाथों के रंगोटे वहां पे खड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़ चिड़चिड़ आवाज भी आएगा क्योंकि वो चार्ज है ना वैसा। ठीक है, इतना भी चार्ज नहीं है कि आपके पूरी बॉडी को वो करंट मारे, लेकिन आपके जो रंगोटे हैं वो बहुत हल्के हैं, इसीलिए वो वैसा स्टैंड अप मोड में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड। ओके, इनका डिसएडवांटेज क्या था भाई साहब? बल्कि इन साइज। पहले के जमाने के कंप्यूटर्स देख लो, पहले के जमाने की टीवी देख लो भाई साहब, डब्बों की तरह आते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी में बड़ा वैक्यूम ट्यूब लगता था जिसकी वजह से इनका साइज बल्कि हो जाता। ठीक है, अभी समझो आपने एक कंप्यूटर मंगाया या आपने एक टीवी मंगाया अपने घर में, चलो बात समझ में आती है, लेकिन अगर मुझे कोई ऑफिस सेटअप करना है और कम से कम 40 कंप्यूटर्स लगाने हैं, तब तो मेरे लिए स्पेस मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा ना भाई साहब। हर एक को इतना बड़ा बड़ा टेबल दो, हर एक को इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर दो, है ना, सो दैट विल बिकम अ डिफिकल्ट थिंग। अभी ये एक चीज है। ओके, तो बल्कि इन साइज वैक्यूम क्रिएशन इज चैलेंजिंग। जैसे मैंने आपको बोला, इन जगहों पे प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि जो वैक्यूम होता है उसको क्रिएट करके रखना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं से एयर घुस ही जाएगा उसके अंदर। और वैक्यूम कैसा होता है, जो ट्यूब होते हैं वो भी कभी कभी एयर प्रेशर से पिचक जाते हैं, बाहर तो प्रेशर है ना भाई साहब, तो वो हो सकता है पिचक जाए। ठीक है, तो इसीलिए वैक्यूम को क्रिएट करके रखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में वैक्यूम को क्रिएट करके रखना बड़ा मुश्किल है। तो वैक्यूम क्रिएशन एक चैलेंजिंग टास्क है। ऑपरेट्स एट हाई पावर, इसमें भाई साहब हाई पावर लगता है। ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स को वहां तक भेजना है एनोड तक। ऑपरेट एट हाई वोल्टेज भी लगता है। लो लाइफ, वैक्यूम ट्यूब्स की लो लाइफ होती है। अभी जो एलईडीज आ गए हैं इनका मेंटेनेंस उतना हाई नहीं है जितना पहले के जमाने के टीवीज का मेंटेनेंस था या कंप्यूटर्स का। ठीक है, ओके, लेस रिलायबिलिटी। आपको मालूम है पहले के जमाने में, जैसे समझ लो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब होगा, है ना, तो उस स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका मैं अगर एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले लूं, लेट्स से आई एम अ प्राइवेट वेंडर, तो मेरे को नई नई करके आपके स्कूल से 1-2 लाख का इनकम होगा। ऐसे मेरे पास 50 स्कूल अगर होंगे तो 50 लाख का इनकम हो जाएगा। लेकिन अभी उतना मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, अभी वैसा कोई भी हार्डवेयर अपना ठीक कर देगा। पहले के जमाने में ये बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, अभी नहीं होता है। तो पहला आपका लो लाइफ होता था, लेस रिलायबिलिटी होती थी। ये सब वैक्यूम ट्यूब्स के डिसएडवांटेजेस थे। बिकॉज ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, सिलिकॉन हैज और अदर सेमीकंडक्टर्स हैव इवॉल्वड। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का इवॉल्वमेंट इन 1930s, solid state semiconductors were discovered in which the charge carriers, that is electrons and holes, कैन बी वेरीड विद सप्लाइंग हीट। तो अभी देखो भाई साहब, ये आपके 1930s में आपका सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, सॉलिड स्टेट, इनमें अपन थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करके इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और ये एनर्जी कैसी हो सकती है भाई साहब? इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ लाइट और वोल्टेज, ये तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, हीट, लाइट एंड वोल्टेज। हीट, लाइट और वोल्टेज से आप भाई साहब इनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस ला सकते हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल?
समझ में आता? ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है भाई साहब सेमीकंडक्टर्स का? तो जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स का जो डिसएडवांटेज है वही एडवांटेज हो जाएगा किनका? सेमीकंडक्टर्स का। स्मॉल इन साइज, नो वैक्यूम और हीटिंग इज रिक्वायर्ड, कोई वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है वैसा, ठीक है। वैक्यूम क्रिएशन एक बड़ा टास्क है। स्मॉल इन साइज, ऑपरेट्स एट लो पावर, लो वोल्टेज, लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी, ये सब भाई साहब आपके सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दीज आर स्पेशल एडवांटेजेस दैट सेमीकंडक्टर्स हैव ओवर वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो जैसे आपने देखा भाई साहब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वेरी वाइडली यूज्ड इज सिलिकॉन, ठीक है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। तो ये सब आपके भाई साहब कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? दीज आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें आपका कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हो, एंथ्रासीन हो गया, ठीक है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तो अभी भी इनका यूज उतना ज्यादा नहीं हुआ है, मोस्टली दीज आर यूज, उसके बाद ये, ठीक है। ओके, अभी देखो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी कितनी होगी? इतनी, और कंडक्टिविटी लगभग इतनी। कंडक्टिविटी होती क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स में भाई साहब 10⁻⁵ से लेकर 10⁻6 सॉरी 10⁻6 ओम मीटर तक सेमी कंडक्टर्स का होता है, और इसका उल्टा 10⁵ से लेकर 10⁻6 सीमेंस पर मीटर। इंसुलेटर में 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर, ठीक है। ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, काम का तो है लेकिन कंडक्टिविटी के टर्म्स में कोई काम का नहीं है, ठीक है। ओके, एन आइसोलेटेड एटम, तो जैसे अभी देखो एनर्जी लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, सो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय एन आइसोलेटेड एटम? हम एक आइसोलेटेड एटम से क्या समझते हैं? एक मिनट भाई, so what do we mean by an isolated atom? ठीक है, in an isolated atom the energy of an electron depends upon the orbit in which it is revolving। मेहंदी का कौन लेकर आऊं भाई साहब, तमन्ना पूरी कर लो तुम, हैं? तब से तुम्हारे हाथ में मेहंदी बनाई जा रही है। In an isolated atom the energy of an electron depends upon the orbit in which it is revolving। किस ऑर्बिट में भाई साहब ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। क्या करें भाई साहब बताइए, क्या इसका क्या इलाज करें? ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड एटम है, ठीक है। अभी समझो भाई साहब n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 है, तो आपका किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर उसकी एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है, किस ऑर्बिट में। तो जैसे ये बोर्स मॉडल है भाई साहब, n इज इक्वल टू 4 में इतना हो गया, ये आपने पढ़ा था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है, इस तरह से भाई साहब। तो इन एन आइसोलेटेड एटम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये आपके आपके भाई साहब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है इन एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। आपके आइसोलेटेड एटम में भाई साहब ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। ओके, energy band containing valence electron, this energy band refers to the range of energies possessed by valence electrons in a crystal। तो आपके जो वैलेंसी बैंड होती है ये एनर्जी बैंड है, मतलब आपके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने तक एटम से ना बिछड़कर एटम के साथ रह सकते हैं, कितने लेवल ऑफ एनर्जी तक। एक लेवल ऑफ एनर्जी के बाद वो एटम को छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन कितने लेवल ऑफ एनर्जी तक वो एटम के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। दिस एनर्जी बैंड रेफर्स टू द रेंज ऑफ एनर्जीज, कितने रेंज ऑफ एनर्जीज तक possessed by valence electrons in a crystal, एक क्रिस्टल के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है कितने देर तक पड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी बैंड, द एनर्जी बैंड कंटेनिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। द वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब तक ये कंडक्शन बैंड में ना चले जाए, ठीक है, वैलेंसी बैंड। तो ये है आपका कंडक्शन बैंड। ये भाई साहब, तो आपने अगर समझ लो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है, इसमें अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, इससे आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के साथ जुड़े हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स के जो जुड़े हुए अपने एटम्स के साथ, इनमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं मूव करेंगे तब तक किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का या पोटेंशियल डिफरेंस का इम्पैक्ट का उन्हें असर नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, तो
The valency band electrons do not participate in any kind of electrical conductivity. For a particular crystal, the valency electrons require a certain amount of energy to get rid of the influence of the nucleus. तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट दे रिमेन इनसाइड द क्रिस्टल एज फ्री और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से क्रिस्टल के अंदर रहते हैं. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल बैलेंसिंग को एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है. ये एनर्जी का वो करेंगे क्या, टपकेंगे कहां पे, कंडक्शन बैंड में. The electrons will absorb this energy, cover this energy gap between the conduction band and the valency band, and finally move on to the conduction band, wherein under the influence of a particular potential difference or a certain electric field, they are going to support the electrical conductivity. Okay? For a particular crystal, the valency electrons require a certain amount of energy to get rid of the influence of the nucleus, but they remain inside the crystal as free or conducting electrons. क्या ये समझ में आ रहा बच्चा पाड़ी? बहुत बहुत बढ़िया. Okay. Energy band in which electrons ionized from atoms exist. ठीक है, the band above valency band is called the conduction band. तो ये आपका conduction band है क्या बच्चा पार्टी? Energy band in which electrons ionized from the atoms exist. तो जो electrons हैं जो ionize हो गए हैं atom से, वो इधर आते हैं. ठीक है, okay. The band above the valency band is called the conduction band. The conduction band refers to the range of energies possessed by free electrons in a crystal. ये इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री हो गए, बंधन से आजाद हो गए और ये कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे. एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड. तो ऐसा हो सकता है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करें या ना करें. ठीक है, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, the energy gap between the conduction band and the valency band is defined as, तो energy gap क्या हो जाएगा भाई साहब, conduction band minimum minus valency band maximum. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? conduction band minimum मतलब यहां से देखो चालू हो रहा है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है. तो ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड मिनिमम, ये हो गया कंडक्शन बैंड मैक्सिमम, और ये क्या है भाई साहब आपका वैलेंसी बैंड मैक्सिमम, और ये हो गया आपका वैलेंसी बैंड मिनिमम. तो ये वाला जो गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड मिनिमम एंड वैलेंसी बैंड मैक्सिमम, ये होता है भाई साहब आपका एनर्जी गैप. ठीक है, वेरी प्रिसाइसली एनर्जी गैप इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मिनिमम कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड का मैक्सिमम. ठीक है, तो एनर्जी गैप विल बी EC minus EB. आर वी क्लियर? The energy gap between the conduction band and the valency band is defined as this. Electrons in valency band may gain energy and transit to conduction band. ठीक है, ये एनर्जी गेन करेंगे और कहां जाएंगे भाई साहब, कंडक्शन बैंड में. These electrons cannot be found in the region between valency band and conduction band. कहीं बीच में नहीं रहेंगे ये भाई साहब. ठीक है, या तो इधर या तो उधर. ठीक है, the energy is lying in between valency band and conduction band. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन. तुम्हारा भी लैंड नहीं है, मेरा भी लैंड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरबिडन लैंड, बंजर जमीन है. ठीक है, ये किसी के अंडर में नहीं है. ठीक है, नो मैंस लैंड जिसको अपन बोलते हैं. तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, इसीलिए इसको फॉरबिडन बोलते हैं. और इसीलिए इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. नो मैटर हाउ मच एनर्जी द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स, इट विल नेवर मूव हियर, इट विल स्ट्रेट अवे मूव हियर. ठीक है, ओके. The energies lying between the valency band and the conduction band are forbidden. That is, it is restricted and prohibited for electrons. Thus, there is an energy gap, okay, also known as forbidden energy gap. इस energy gap को अपन क्या बोलेंगे, forbidden energy gap. Are we clear to this one? When energy equal to Eg is provided, जब हम इतना energy देते हैं, the electrons from the valency band jumps into the conduction band, leaving a hole. तो जैसे electrons वैसा move करते हैं, तो they leave a hole. ठीक है, इक्वलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज. इसका भाई साहब पॉजिटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह को छोड़ता है तो उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज का आना बनता है. ठीक है, किसी प्रोटॉन की वजह से नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन के डेफिसिट की वजह से. इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ओके. लीविंग अ होल इक्वलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी बैंड. तो आपके भाई साहब इंसुलेटर्स कौन हो गए, इंसुलेटर्स कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में जब एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, सो दे विल फॉल अंडर द ग्रुप ऑफ इंसुलेटर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल डायमंड का देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी गैप. ठीक है, इट शुड बी हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर टू एक्साइट वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्शन बैंड. ये मोल्टेन स्टेट में शायद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. ठीक है,
सेमीकंडक्टर्स का देखो भाई साहब, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे सिलिकॉन का देखो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है एनर्जी गैप। जर्मेनियम का अगर आप देखोगे 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑन अब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग जंप्स फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड पार्टिसिपेट इन कंडक्शन, इट ऑल्सो लीव्स अ होल, दैट इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिहाइंड, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब कंडक्शन, इसमें तो भाई साहब ओवरलैपिंग है, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में ओवरलैपिंग है, हमेशा अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी for the valence electrons to actually move into the conduction band in case of metals or conductors. Electron readily jumps from conduction band to valency band and participate in conduction. इसको लिख लीजिए भाई साहब, this is important, ठीक है। इसको जरा फटाफट लिख लीजिए, नोट कीजिए, क्विक 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 जल्दी से। Done? Okay. Now, which of the following statement is true? Energy levels in crystal is always greater than their original energies in an isolated atom. Electrons may or may not exist in conduction band. Vacuum tube has high reliability. तो ये तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड, क्या ये होगा भाई साहब? यस। मेटल होगा तो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर सकता है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस मच, ये तो मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। Okay, so energy levels in a crystal always can be slightly greater or smaller than their original energies in an isolated atom. ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। देखो, एनर्जी लेवल्स इन क्रिस्टल ऑलवेज ग्रेटर नहीं हो सकता, स्मॉलर भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी ग्रेटर और स्मॉलर। एनर्जी लेवल्स इन क्रिस्टल कैन ऑलवेज बी स्लाइटली ग्रेटर और स्मॉलर देन देयर ओरिजिनल एनर्जीज इन एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। तो आइसोलेटेड एटम में भाई साहब ये देखो, इसका मतलब क्या है, एक समझ लो, एक एक भाई साहब ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में से मैंने एक एटम को निकाला, इस एटम में जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का, और इस क्रिस्टल में जो हर एक एटम का एनर्जी लेवल है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कम ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा हो ये भी हो सकता है, इससे कम हो ये भी हो सकता है। एन आइसोलेटेड एटम फ्रॉम अ क्रिस्टल ऑफ एटम्स कैन हैव एनर्जी लेवल्स इधर ग्रेटर और लेसर, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। एनर्जी लेवल्स इन क्रिस्टल इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ओरिजिनल एनर्जीज, तो ये ग्रेटर और स्मॉलर दोनों भी हो सकता है। एनर्जी लेवल्स इन क्रिस्टल always can be slightly greater or smaller than their original energies in an isolated atom. Okay. Electrons may or may not exist in conduction band. तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है एग्जिस्ट करें या ना करें भाई साहब कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अगर कंडक्टर होगा या मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड, अदरवाइज नॉट। वैक्यूम ट्यूब हैज लेस रिलायबिलिटी, इसी की वजह से तो भाई साहब आपका सेमीकंडक्टर्स आया। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁵ to 10⁻⁶ ohm meters, ठीक है। So only option is this one, B. Okay, carbon, silicon and germanium have energy band gap respectively equal to this. Which of the following statement is true? Even I am not aware कौन सा भाई साहब सही होगा, ठीक है। तो कार्बन का ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इट कैन नॉट बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर, इसको अपन सेमीकंडक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। सिलिकॉन को यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम को भी अपन यूज कर सकते हैं,
सिलिकॉन का हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप, तो आपका कितना होना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए? मेहंदी डिजाइन करो हुआ तो वैसा कितना होना चाहिए? नहीं नहीं, कितना होना चाहिए फॉर्मूला एनर्जी गैप? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इट विल बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, दिस विल आल्सो बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर। तीनों भी आपके ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। However, silicon and germanium will behave as a semiconductor because their forbidden energy gap is lesser than 3 electron volts. Are we getting this people? हम समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 14 हो गया, ये 32 हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर हो गया आपका। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वही 4 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी होगी, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी होगी तो वही आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। ओके, एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, द साइज ऑफ द एटम, इसका छोड़ दो भाई साहब, as the valence electrons will be further away from the nucleus, है कि नहीं, and hence they can be ionized। अभी कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 14, इसके 32 हो गए भाई साहब, ठीक है। ओके, so as the size of the atom increases, the valence electrons will be further away from the nucleus and hence they can be ionized much easily। It means larger the size of the atom, lesser will be the energy band, ठीक है। तो जितनी आसानी से आप एटम को आयनाइज कर सके, उतनी ही आसानी से भाई साहब आप एनर्जी गैप को भी कवर कर पाएंगे। बिकॉज जर्मेनियम हैज 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके भाई साहब एनर्जी लेवल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। सो द साइज ऑफ द एटम विल बी मोर, इट मींस दैट the electrons in the valency shell will be further away from the nucleus, hence it is easier to ionize germanium। If it is easier to ionize germanium, obviously the energy gap would be lesser, ठीक है। As the size of the atom increases, the valence electrons will be further away from the nucleus and hence they can be ionized much more easily। Ionize matlab to get rid of the electrons। It means larger the size of the atom, lesser will be the energy band gap। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा किसी एटम का साइज, उतना लेसर हो जाएगा आपका एनर्जी गैप। तो यहाँ पे एनर्जी गैप ऑफ कार्बन विल बी मोर देन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन एंड दिस विल बी मोर देन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। दिख ही रहा है भाई साहब, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इसीलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन बिलोंग्स to group 4, still it will not be behaving as a semiconductor because its forbidden energy gap is more than 3 electron volts। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो देखो यहाँ पे अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको लिख लीजिए भाई साहब, अ प्योर सेमीकंडक्टर जो है उसको अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ओके, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन हो गया, देखो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें सब में बॉन्डिंग है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब सिलिकॉन के पास? 4। ओके, तो ये एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, है ना। 4 है ना, तो उसको 8 करना है स्टेबिलिटी के लिए। तो वो क्या बना करेगा, एक सिलिकॉन एटम भाई साहब अपने आजू बाजू के 4 के साथ कंबाइन करेगा, जैसे कार्बन करता है भाई साहब, ठीक है। तो ये सब आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स हो गए। ये देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन का, इस वाले इलेक्ट्रॉन का, इस वाले सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गेट फॉर्म। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका सिलिकॉन एट 0 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे आपका देखो ये कौन सा है भाई साहब, वैलेंसी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भाई साहब आपको क्या है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एनर्जी गैप है, 0 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहां पे सिलिकॉन इज एग्जिस्टिंग एज अ कोवैलेंट क्रिस्टल। तो दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट, ये हो गया भाई साहब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है? मतलब कितना हो जाएगा ये, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी एट जैसे ही आप टेम्परेचर को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई साहब, यहां से इलेक्ट्रॉन्स लीव होना चालू करेंगे एंड दे विल स्टार्ट गोइंग इनटू द आपका एनर्जी, ये इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आपने देखा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो है, फट से वो भाई साहब ऊपर जाकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जमा होना चालू हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं, दे आर लीविंग बिहाइंड होल्स एंड दीज होल्स आर नथिंग बट पॉजिटिव चार्जेस।
आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? और ये हो जाएंगे भाई साहब आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा बढ़ता है, 0 केल्विन से, तो आपके जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्किप एंड मूव ऑन टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, आर वी क्लियर? दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, ये तो आपने देखा कि भाई साहब कैसे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहां से रहे हैं भाई साहब? इनके बीच में से तो आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यहां से चला गया एक इलेक्ट्रॉन, होल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल क्रिस्टल है, दिस इज बेसिकली क्रिस्टल एट 0 केल्विन। ठीक है, जैसे ही भाई साहब आपका थोड़ा सा आपने टेम्परेचर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव हो रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे भाई साहब? इस क्रिस्टल में से ही तो आएंगे। और इस क्रिस्टल में जैसे ही आपने भाई साहब, ये देखो होल क्रिएट हो गया, ये देखो एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी इस होल को भरने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से जो उसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो भाई साहब मूव करेगा इधर। समझ में आ रहा भाई साहब? यहां पे क्या हो गया? होल क्रिएट हो गया ना। क्यों ही होल क्रिएट हो गया? क्योंकि आपका भाई साहब जैसे ही 0 डिग्री केल्विन से टेम्परेचर ऊपर जाएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रॉस करेगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? दे विल स्टार्ट मूविंग इनटू द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इकट्ठा होने से कंडक्शन चालू हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि भाई साहब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उधर तो पॉजिटिव होल छोड़ दिया उसने। ये आप कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड का चक्कर देख रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल स्थिति तो एटम की है, ये क्रिस्टल है, यहाँ पे भाई साहब होल्स क्रिएट हुए हैं। तो अभी ये होल क्रिएट हुआ मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा इधर क्या हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, जैसे ये मूव करेगा इधर, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ये मूव करेगा, ऐसा ऐसा करते करते भाई साहब चेन ऑफ मूवमेंट चालू हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं विद इन एन एटम, व्हाट विल हैपन? कंडक्टिविटी। दिस इज हाउ द कंडक्टिविटी हैपेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन बैठे बिठाए जैसे ही वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और कोई भी चीज एब्सोल्यूट टेम्परेचर में नहीं रहती है भाई साहब। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बन जाता है भाई साहब। -273 तो अनअटेनेबल। ठीक है, तो मतलब थोड़ा भी रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे तो वो कंडक्टिविटी दिखाएगी। ठीक है, और ये रीजन है इसके कंडक्टिविटी का। ठीक है, ये रीजन है इसके कंडक्टिविटी का। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जनरेशन ऑफ होल साइड। ठीक है, आपका देखो इस तरह से ये होल्स जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया। ठीक है, जैसे ही होल जनरेट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड, और ये एनर्जी कभी हो जाएगा भाई साहब? जैसे ही आप 0 केल्विन से ज्यादा हो जाएंगे टेम्परेचर। ठीक है, द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड व्हिच इज कॉल्ड द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटने लगेगा, क्योंकि अभी तक क्या है? देखो कोवैलेंट बॉन्ड है, देखो इस चीज का मैकेनिज्म समझो। ये एनर्जी गैप इधर क्यों कवर करके जा रहा है? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स है व्हिच आर वीकर बॉन्ड्स, और ये वीकर बॉन्ड्स टूटेंगे एनर्जी सप्लाई से, और जैसे ही टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स वंस दे मूव आउट दे विल क्रिएट अ होल, एंड वंस दे कम इन दे विल अगेन become इलेक्ट्रॉन्स एट दैट सेम प्लेस। ठीक है, when the energy is provided the covalent bond breaks and a free electron is generated which is called the thermally generated free electron. This free electron will generate a vacancy called a hole, और ये vacancy जो जनरेट हुई है ये होल, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, so it is possible that another bonded electron may fill this vacancy while creating a hole at that side. The electrons keep on creating holes as they keep on filling the vacancies at other sides. ये holes create होते रहेंगे भाई साहब, फिर continuous movement चालू होगा। ठीक है, this will seem as if the holes itself are moving from one side to another and it is perceived as a hole current. तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब होल्स मूव कर रहे हैं। जैसे आपने देखा ना दिवाली लाइटिंग कैसी होती है, ऐसे जा रहा है, ऐसा लगता है कि भाई साहब वो लाइट आगे जा रही है। लाइट अपनी जगह पे ही है, सिर्फ जो रोशनी है वो एक बंद हो रहा है एक चल रहा है, एक बंद हो रहा है एक चल रहा है, ऐसा। ठीक है, इट सीम्स दैट दिस एंटायर थिंग इज मूविंग बट इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, लाइट जो है एक बुझ रहा है एक जल रहा है, ये इफेक्ट की वजह से आपको लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, द सेम थिंग हैपेंस हियर कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स एक होल से ऐसे जा रहे हैं, इट सीम्स दैट द होल इटसेल्फ इज मूविंग और द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग। इस पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? होल करंट। दिस इज नोन एज द होल करंट। ठीक है, हम पॉजिटिव चार्ज का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स डू नॉट मूव, इट रिक्वायर्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक आउट अ प्रोटॉन आउट ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, इट्स नॉट द प्रोटॉन्स, इट्स द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is creating this positive charge, and the movement of these positive charge is actually known as hole current. Okay, okay, therefore we can say that there are two types of charge carriers, electrons and holes. ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया होल्स।
current flowing in a semiconductor is due to both free electrons and holes. Okay, so this was about an introduction to the semiconductors. Now we are going to understand कि भाई साहब तो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है और उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए ही आपके सेमीकंडक्टर्स आए हैं, और सेमीकंडक्टर्स में होते हैं आपके वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स, ठीक है। ओके, और ये एनर्जी गैप होती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, लिमिटेशंस, डोपिंग क्या होती है, एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, एन टाइप मतलब नेगेटिव, पी टाइप मतलब पॉजिटिव। जहां पे होल करंट प्रीडोमिनेटली चलता हो वो पॉजिटिव, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे एन टाइप, सिंपल, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, semiconductors are materials which have a conductivity between conductors and insulators. तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में इनकी कंडक्टिविटी है, ठीक है। इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये भाई साहब कंट्रोल कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स को, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स कैन एक्चुअली कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। एक मिनट, ओके। So it can control the number of charge carriers, that is electrons and holes. It can give unidirectional current, ठीक है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर का बेस्ट फीचर है कि ये आप कंट्रोल कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स और होल्स को, पहली बात। और अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप किसको कंट्रोल कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड इट गिव्स यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है। ओके, वैक्यूम ट्यूब में क्या प्रॉब्लम है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट रिकैप है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। Vacuum is created because electron can collide with air molecules and lose its energy. Disadvantage, bulky in size, vacuum operation challenging है भाई साहब, operates at very high power, so there is a loss of energy, operates at high voltage, low life है, और इसकी less reliability है, जिसके वजह से सेमीकंडक्टर्स आए। Now valency band, energy band containing valency electrons. This energy band refers to the range of energies possessed by valency electrons in a crystal. These valency band electrons do not participate in electrical conductivity, ठीक है। Energy band in which electrons ionize from atoms exist. The band above the valency band is called the conduction band. Electrons may or may not exist in conduction band, ठीक है। Conduction band electrons are responsible for electrical conductivity. May or may not क्यों बोल रहे हैं? जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपका वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग हो रही है, तो यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग इन द कंडक्शन बैंड फॉर मेटल्स। However, in the case of semiconductors, under the application of temperature, you will see these electrons moving, ठीक है। और अगर आप भाई साहब इंसुलेटर्स की बात करें तो काफी बड़ा एनर्जी गैप है, they will not be able to cover. Okay, electrons may or may not exist in conduction band. Conduction band electrons are responsible for electrical conductivity. तो आपका कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम माइनस वैलेंसी बैंड का जो मैक्सिमम, ये हो जाएगा भाई साहब आपका एनर्जी गैप, ठीक है। कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंसी बैंड मैक्सिमम। ओके, इंसुलेटर्स में भाई साहब कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस है, जिसके वजह से दे विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम द वैलेंसी बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर्स में भाई साहब लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और कंडक्शन बैंड में तो भाई साहब कंडक्टर्स में तो कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग है। A pure semiconductor is called an intrinsic semiconductor. एक प्योर सेमीकंडक्टर को अपन क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का भी भाई साहब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 4 पॉजिटिव चार्ज सब में रहेगा, ये एटम्स है बेसिकली, ये सिलिकॉन के एटम्स है, 4 पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के आजू बाजू के साथ उनका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। ओके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शेयर वन ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच ऑफ इट्स 4 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। These shared electron pairs form covalent bonds, ठीक है। तो ये भाई साहब आपके कोवैलेंट, तो ये आपका जो येलो वाला दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स हो गए और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो देखो ये वाला एक एटम है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले एटम का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले एटम का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले का उधर होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली, जैसे इसको देखोगा ये सिलिकॉन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है, और इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला,
इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो इस तरह से भाई साहब आपके 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, as the temperature rises, thermal energy causes electrons to break away। भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फार मोर दे आर लेसर स्ट्रॉन्ग देन द आयनिक बॉन्ड्स। तो जैसे थोड़ी बहुत भी थर्मल एनर्जी इनको मिल जाती है, और ये थर्मल एनर्जी आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जैसे ही रूम टेम्परेचर में आएंगे, ऑब्वियसली दीज एटम्स विल गेट एनफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। और ये थर्मल एनर्जी से क्या हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रेक अवे, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन, ये भाई साहब कंडक्शन चालू हो जाएगा। एज द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम इट्स साइड, इट लीव्स बिहाइंड एन एम्प्टी स्पेस नोन एज अ होल। इससे भाई साहब होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहाँ पे भाई साहब एक होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी, होल्स, इफेक्टिव चार्ज प्लस ई। As electrons remain inside the crystal, they just leave their side due to the thermal agitation. Thus, the crystal remains electrically neutral. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अभी आप बोलेंगे कि भाई साहब क्रिस्टल में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रहेगा, है ना, लेकिन वो घूम रहा है, तो क्रिस्टल के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है। क्रिस्टल होल मतलब इलेक्ट्रॉन होल ऐसे क्रिएट होता जा रहा है। तो देर इज नो चार्ज इम्बैलेंस। हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में आप बहुत ही बार ऐसे सिचुएशंस में आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि भाई साहब चार्ज में इम्बैलेंस क्रिएट होगी, नहीं, कतई नहीं होगी। चार्ज में कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, चार्ज के मूवमेंट से चार्ज में कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही भाई साहब पॉजिटिव होल भी क्रिएट होगा। जैसे मैं एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना प्रोटॉन्स। इसी तरह से जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे ड्यूरिंग द मूवमेंट, उतने ही आपके होल्स भी क्रिएट होंगे। So that is how it gets balanced. Are we clear? So there will be no change in the neutrality. Neutrality में कोई भी change नहीं आएगा, ठीक है। Holes, ठीक है, जो होंगे they will have a positive charge. As all the electrons remain inside the crystal, they just leave their side due to thermal agitation. Thus, the crystal remains electrically neutral. The apparent motion of electron and hole are opposite to each other. Thus, direction of motion of holes gives the direction of flow of current. ठीक है, तो होल्स का जो मूवमेंट है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। देखो, अगर मैं किसी सर्किट की बात करूं, देखो यहाँ पे ये सर्किट है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपका इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किधर से क्लियर फ्लो हो रहे हैं, इधर से इधर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर फ्लो हो रहा है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो और करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसी तरह से यहाँ पे होल्स का जो फ्लो होगा, दैट विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द करंट, ठीक है। ओके, सो द अपरेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। thus the direction of motion of holes give the direction of flow of current, or the direction of motion of the electrons is opposite to the direction of flow of current, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन कंडक्शन बैंड गिव्स इलेक्ट्रॉन करंट आई, अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है तो आई, एंड होल मूवमेंट गिव्स आई एच, ठीक है। इन वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड में होल मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स का जाना जरूरी है, तभी तो कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में पहुंचना जरूरी है, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएंगे आपके होल्स, ठीक है। तो होल का करंट कहां पे जनरेट होगा, वैलेंसी बैंड में, और कंडक्शन करंट कहां पे जनरेट होगा, आपके कंडक्शन बैंड में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन कंडक्शन बैंड गिव्स इलेक्ट्रॉन करंट, एंड होल मूवमेंट इन वैलेंसी बैंड गिव्स होल करंट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका, this IE plus IH, ठीक है। IE is generated in conduction band, IH is generated in valency band. Are we clear? Okay. An intrinsic semiconductor, in intrinsic semiconductor, the number density of free electrons is equal to the number density of the holes, ठीक है। number density of free electrons is equal to the number density of holes, number density of free electrons is equal to number density of holes, and this is equal to basically intrinsic carrier concentration। अगर इसको अपन करेंगे वैसा, तो ये दोनों भी, तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। कैरियर क्या है, या होल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों भी इक्वल हैं। इसको लिख लीजिए भाई साहब, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट।
ठीक है. Okay, now it is possible that the hole created at site 1 by a thermally generated free electron may get filled by another free electron at site 2, leaving behind a hole at that site. So site 1 से site 2 वैसे अपने को it is possible that the hole created by at site 1, तो site 1 है, देखो ये समझ लो, ठीक है. hole created at site 1 may get filled by another free electron at site 2, तो site 2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया है ना, हो सकता है site 2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है. ओके, leaving behind a hole at that site, यहाँ पे एक होल रह जाएगा, ठीक है. The electrons keep on creating holes as they keep on filling the vacancies at other sites. This will seem as if the holes itself are moving from one side to another. ऐसा लगेगा कि भाई साहब holes are moving from one side to another. That is why holes can also be considered as energy carriers. इसीलिए हम holes को क्या बोलते हैं भाई साहब, energy carriers. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो holes are also known as energy carriers. Semiconductors that are chemically pure or free from impurities are known as intrinsic semiconductors. ठीक है, तो ऐसे semiconductors that are chemically pure or free from impurities are known as intrinsic semiconductors. इसको लिख लीजिए भाई साहब. impurities मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं है. impurities मतलब ऐसी चीजें जो उनके कंडक्शन को ऐसा इम्पैक्ट कर सके, ठीक है. हो गया. ओके, आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सिलिकॉन ये भाई साहब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और जर्मेनियम प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है. ये आपके जो एटमॉस्फेयर, दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है. इनको अपन बोलेंगे भाई साहब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दैट आर केमिकली प्योर और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है. इनको अपन बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स करंट इज कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर एंड नॉट बाय द यूजर, ठीक है. हम करंट को कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर से और ना कि यूजर से, ठीक है. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी स्मॉल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका चार्ज कैरियर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो होल्स भी हो सकते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम. ये हो गया एन, ठीक है. ये हो गया ई, ये मतलब चार्ज, ये एक चार्ज हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हो गया ए, ए मतलब हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी डी मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. तो एन इज इक्वल टू एन एच होता है भाई साहब, हेंस दे हैव पुअर एफिशिएंसी, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी स्मॉल, काफी स्मॉल करंट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, इसीलिए एन इज इक्वल टू एन एच होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इसलिए आपका पुअर एफिशिएंसी होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है. क्लियर है? ओके ओके ओके. इन सेमीकंडक्टर्स डोपिंग करते हैं हम, ठीक है. डोपिंग मतलब मिलावट, ठीक है. जबरदस्ती का किसी और एटम को हम ठूस देते हैं. डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स इन द लैटिस ऑफ एटम्स बाय नेबरिंग कॉलम्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल. अभी जैसे देखो यहाँ पे ग्रुप 4 है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रुप 4 है, ठीक है. ग्रुप 4 मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4. तो ये सिलिकॉन है, ये क्या करेगा भाई साहब, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्डिंग बनाएगा आजू बाजू में. अभी हमने डोपिंग कर दी, तो मतलब अभी सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, देखो ये समझ लो,
एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जा रहा है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ डोपिंग होता क्या है। ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे सब भाई साहब बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे कहीं पे हमने सिलिकॉन को हटाकर लेट से अपन ला रहे हैं क्या, गैलियम को लाते हैं, ठीक है, गैलियम को। अभी गैलियम क्या है भाई साहब, इसके इधर वाला है, तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3, ठीक है, एक भाई साहब ग्रुप कम हो गया ना, तो 3 है, तो गैलियम तो 4 नहीं बना पाएगा भाई साहब, तो गैलियम का सिलिकॉन के साथ 1, 2 और ये 3, ये खाली रह जाएगा। ये जैसे ही खाली हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया भाई साहब, और दूसरा क्या क्रिएट होगा, होल। समझ में आ रहा है भाई साहब, तो अपन इसको बोलते हैं डोपिंग। और अगर मैंने यहाँ पे आर्सेनिक को डाल दिया, समझ लो आर्सेनिक को डाल दिया, तो आर्सेनिक से क्या हो जाएगा, आर्सेनिक जैसे यहाँ पे है तो इसका 5 है, ठीक है, तो 5 है मतलब 1 2 3 4 और एक और 5 चाहिए इसको, 5 तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूमेगा और तांडव करेगा भाई साहब, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह घूमेगा और होल्स क्रिएट करता रहेगा, तो इसको बोलते हैं अपन डोपिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, ठीक है, ओके। So doping is a process of replacement of a small number of atoms in the lattice by atoms of neighboring columns from the periodic table. तो ये नेबरिंग कॉलम है, जो फोर्थ ग्रुप है, तो इधर 3 या इधर 5 से आप डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। These doping atoms create energy levels within the band gaps and therefore they alter the conductivity. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। सब लोग जरा उधर जाएंगे क्या, सर जी, हीट स्लीप चिल रिपीट